So, good morning, everyone. In last class, we learned about the second law of motion. Okay, can anyone tell me what it stated? Second law of motion. What is stated by the second law of motion? Hello. So, the rate of change of momentum is directly proportional to, yes, directly proportional to an external force applied on an object. Very good. Okay. Okay, very nice, Arshan. So, the rate of, yes, change of momentum is directly proportional to the external force or the external force को और क्या बोलते हैं बेटा हम? Unbalanced force. Very good. Applied on an object. Okay, that is the second law of motion. Now, the second law of motion is often seen in daily actions. Okay, for example, in cricket, you have seen that a fielder, whenever he catches a ball, so that time he क्या करता है वो? He pulls his hands backward with the moving ball. करता है बेटा जब भी वो बॉल कैच करते हैं, so they pulls their hand backward with the ball, with the moving ball. So why they are doing this? Can anyone tell me? Why they are doing this? So for example, here I have written F is equal to ma. Okay? F is equal to ma. So that way, force, mass हम change नहीं कर सकते. What is acceleration? Acceleration, that means, बोलो बेटा, एक ही जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ? तो v minus u upon t. Can I write this? V minus u upon t. Okay, v minus u upon t, that is change in acceleration. Okay, final velocity minus initial velocity. What is acceleration? Change in velocity. Okay, so that is v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity. Okay, so I can tell that m, okay, v minus u upon t. So if, चलो फोर्स कैसे डाउन किया जा सकता है बेटा? फोर्स को कैसे घटाया जाएगा? फोर्स को मैं कैसे डिक्रीज कर सकती हूँ? बताओ. मास, कैन आई चेंज मास? नो, मास तो वही रहेगा, राइट? ओके, देन इफ फाइनल वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड, okay, so that way we can reduce the force. Understand clearly beta, this topic is very important. Okay, so if final velocity is decreased, okay, because initial velocity में तो कोई चेंज नहीं, initial velocity तो क्या होगी उसकी? जीरो होगी, right? So if final velocity is decreased, तो that way we can decrease the force. चलो कैसे? For example मैं लेती हूँ एक कि मास तो उसका जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, बराबर. फॉर एग्जांपल 25 ग्राम है, 30 ग्राम है, 300 ग्राम है, व्हाटएवर, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल फाइनल वेलोसिटी उसकी 20 है, फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड है, माइनस 0,
बराबर, इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम t इज 2 सेकंड है, चलो टाइम t इज 2, तो क्या होगा इसका, बराबर, तो 20/2 दैट इज 10 होगा, बराबर, इसका मास जो भी है मल्टीप्लाई बाय 10, तो दिस इज फोर्स, अंडरस्टूड। इफ आई डिक्रीज दिस फाइनल वेलोसिटी और इंक्रीज टाइम, या तो मैं फाइनल वेलोसिटी डाउन करूं या तो टाइम इंक्रीज करूं, तो दैट वे आई कैन रिड्यूस फोर्स, अंडरस्टूड एवरीवन। चलो हम टाइम इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी वही की वही है, इंस्टेड ऑफ 2 सेकंड इफ इट टेक 4 सेकंड, देन चलो हो गया, यहाँ क्या होगा 5, फोर्स कम हो जाएगा बेटा, सो दैट वे ऑल्सो आई कैन रिड्यूस द फोर्स। okay so see this same application, okay, is applied to this ball which the fielder is catching। चलो क्या होगा, जब भी वो बॉल बेटा आएगा, हिट करके आएगा और फील्डर उसको कैच कर रहा है, तो दैट टाइम इट इज हैविंग टू मच दैट हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से वो आ रहा होगा ना बेटा, okay, so whenever the fielder is catching that ball, so that time with high force it will strike on the fielder's hand, okay, so by pulling his hands backward the fielder is increasing the time, understood। तो टाइम इंक्रीज किया, वेलोसिटी क्या होगी, उससे डाउन होगी बेटा, वेलोसिटी डाउन होगी, फोर्स क्या होगा, उससे कम लगेगा, सो द फील्डर हैंड विल नॉट हर्ट, अंडरस्टूड एवरीवन। पता चल रहा है बेटा, किसी को प्रॉब्लम है यहां तक, ओके, सो फील्डर इंक्रीजेस द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू 0, तो हाई वेलोसिटी जब उसकी होगी, इफ द फील्डर इज गिविंग मोर टाइम, ओके, द बॉल्स वेलोसिटी विल बी डिक्रीज टू 0, बराबर, और वो फील्डर को हाथ में हर्ट नहीं होगा, ओके। इफ द बॉल इज स्टॉप सडनली देन इट्स हाई वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 0 इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, thus the rate of change of momentum of the ball will be large, बराबर, तो पहले तो बहुत ही हाई वेलोसिटी से आता है, बराबर, तो और सडनली अगर उसको स्टॉप किया जाए, सो द रेट ऑफ मोमेंटम विल बी हाई, ओके, and that way the force will be high, so there is a chance to get hurt, but by pulling the hand backward, barabar, the fielder is giving more time to stop that ball to decrease its velocity, so with a great velocity, with more velocity the force will be reduced, understood everyone, okay, any problem up till here beta, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, चलो सेम एक ऐसा ही एग्जांपल है, आपने जो जंप करते हैं एथलेट्स, बराबर, वो देखा है, तो ऑन द अदर साइड क्या होता है बेटा, कुशन, यस, बेड होता है, बराबर, सो व्हाई so whenever the athlete is coming with high velocity on the ground, okay, so that way because of the cushioned bed क्या होता है, डायरेक्टली वो स्ट्राइक नहीं करता है ग्राउंड पे, if the ground is of that hard surface then एथलीट को बहुत ज्यादा चोट लगती है उससे, बट बिकॉज ऑफ द कुशन बेड, ओके, उसको वो जो जिस हाई वेलोसिटी से ग्राउंड पर आता है, ओके, द टाइम विल इंक्रीज, थोड़ा टाइम लगता है उसको ग्राउंड को स्ट्राइक करने में, बिकॉज ऑफ द कुशन बेड, एंड दैट वे ऑल्सो वी कैन रिड्यूस द फोर्स, वी कैन रिड्यूस द वेलोसिटी, अंडरस्टूड एवरीवन, वेरी गुड, okay, so first law of motion mathematically we can express like F is equal to ma, okay, as I have written here, F is equal to ma, so A is equal to V minus U upon T, बराबर, acceleration क्या है बेटा, change in velocity, okay, बराबर, in given time, so V minus U upon T, okay, or we can I can write it F is equal to m into V minus U upon T, and here चलो T को मैं इस तरफ ले जाती हूँ F के साथ, चलो F T, तो क्या होगा, if I leave the bracket then it will be mv minus mu, होगा ऐसा बेटा,
right? mv minus mu बराबर. So when the force is zero, चलो ये force zero हो गया, that means this left side term will be zero. Understood everyone? If force is zero, applied force is zero, okay, so that way t will be, t उसके multiplication में है, तो it will, the whole left side term will be zero. okay, चलो फिर क्या होगा इससे, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, चलो तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, दिस 0 इज इक्वल टू mv माइनस mu होगा इतना, बराबर. 0 is equal to mv minus mu, so that way I can write, therefore mv is equal to mu. Can I write it? mv is equal to mu. okay, so if initial velocity, that is u is equal to 0, see here, u is equal to 0, बराबर, तो क्या हो जाएगा पूरा, फाइनल वेलोसिटी विल बी ऑल्सो 0, v भी 0 हो जाएगा, बराबर, क्योंकि चलो mv is equal to mu, तो m u की जगह मैंने 0 रख दिया, that means this term will be 0. understood everyone? mv is equal to mu, so instead of u, if I have put here 0, then this term will be 0, so this term will be also 0, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, तो मास तो चेंज नहीं हो सकता, so that way velocity will be 0, final velocity will be 0. understood everyone? so उससे हम क्या स्टेट कर सकते हैं, so when f is equal to 0, that is force is equal to 0, okay, v is equal to u, where final velocity is initial velocity, okay, so whatever time you have taken, this means that the object will continue moving with uniform velocity u throughout the time t. if u is 0, बराबर, then v will also be 0, बराबर. तो once again f is equal to 0, so that way क्या होगा, और अगर u is equal to v हुआ, initial velocity is equal to final velocity हुई, तो क्या होगा बेटा, v will also be 0, बराबर, u 0 होगा तो v भी 0 होगा, which I have proved here. okay, and that way what we can say, the object will remain at rest, that means उस पे कोई फोर्स ही नहीं लगा है, बराबर, वेलोसिटी ही 0 है, तो ऑब्जेक्ट का कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ है, the object will be in rest. understood everyone? any problem बेटा, सबको पता चल रहा है बेटा? okay, fine. now we will see some examples which is given in your textbook. okay, so first one I will solve example 9.1. okay, so a constant force acts on an object of mass 5 kg, बराबर, तो मास कितना है 5 kg, of a duration of 2 सेकंड, 2 सेकंड तक, t is equal to 2 सेकंड, बराबर, चलो m कितना दिया है 5 kg, बराबर, t is equal to 2 सेकंड, बराबर, t is equal to 2 सेकंड, then it increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. चलो 3 meter per second क्या हुआ, initial velocity, okay, 3 meter per second, and final velocity it is 7 meter per second. understood everyone? find the magnitude of the applied force. now if the force was applied for a duration of 5 seconds, अभी हमको time change करना है, first we will find out, okay, applied force for 2 seconds, and then we will find out the force for 5 seconds. okay, then what would be the final velocity of the object. चलो find out करते हैं. चलो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, फोर्स फाइंड आउट करना है, तो द फॉर्मूला already I have explained you, f is equal to m in bracket v minus u upon t, बराबर, so f is equal to m v minus u upon t. चलो every values are given, क्या होगा फिर, therefore f is equal to, मास कितना है बेटा, मास कितना है 5 kg, very good, final velocity 7, okay, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3 अपॉन टाइम कितना है, कितने सेकंड्स है 2. ओके, चलो वेरी इजी. नाउ
क्या होगा 5, चलो 7 माइनस 3 इट विल बी 4 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन. 10 न्यूटन होगा. अंडरस्टूड एवरीवन? 10 न्यूटन force applied. Okay, now what we are doing, what we are going to do now, instead of क्या लेना है हमको 2 second, we will calculate this sum with 5 second. Okay, चलो तो क्या करना है, अभी हमको फाइनल वेलोसिटी काउंट करनी है ना बेटा. चलो तो F इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, m into v minus u upon t, बराबर. नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड v ना, तो चलो v इज इक्वल टू क्या होगा, चलो v को मैं यहां रहने देती हूँ, ये सभी टर्म को इस तरफ ले जाती हूँ. तो सबसे पहले u क्या है, माइनस में है तो u आएगा u. दिस साइड वी आर गोइंग, तो प्लस f t डाउन में है तो इट विल गो अप t, और m मल्टीप्लीकेशन में है इट विल गो इन डिवीजन. अंडरस्टूड? वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया बेटा. नाउ वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज. चलो रखो सभी वैल्यू. u की वैल्यू क्या थी बेटा 3 मीटर पर सेकंड 3 थी, बराबर. चलो फोर्स अभी क्या आया था 10 आया था, अप्लाइड फोर्स अभी 10 न्यूटन आया था ना बेटा कैलकुलेशन में. ओके, मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या लिया इस बार 5. ओके, अपॉन 5 kg मास, तो 5 5 कैंसल, 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13. ओके, क्या है वेलोसिटी का यूनिट, मीटर पर सेकंड. अंडरस्टूड एवरीवन? एनी प्रॉब्लम, एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम बेटा? हेलो, हाँ वेरी गुड, फाइन, इजी ना, वेरी इजी सम. चलो एग्जांपल नंबर 9.2 we will see now, which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square. चलो बहुत ही इजी, बराबर. दो फॉर्मूला में हमको सभी वैल्यू अप्लाई करनी है, बराबर. तो सबसे पहले क्या है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लेंगे हम, F इज इक्वल टू m, क्योंकि क्या दिया है आपको, एक्सेलरेशन दिया है. ओके, ग्रेटर फोर्स किसका है, तो एक्सेलरेशन इज गिवन, मास इज गिवन, तो F इज इक्वल टू m, राइट. सो हियर टू मास आर गिवन, टू masses are given ना. सो व्हाट इज m1, m1 इज इक्वल टू 2 kg. चलो बराबर, एंड एक्सेलरेशन भी दो दिए है ना आपको, तो a1 फर्स्ट एक्सेलरेशन क्या है, a1 is equal to 5 meter into second raised to minus 2. Okay, 5 meter per second square. Okay, m2 क्या है बेटा, m2 चलो बोलो फटाफट. वेरी गुड, बराबर 4 kg एंड a2 उस टाइम एक्सेलरेशन क्या है उसका, वेरी गुड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अंडरस्टूड एवरीवन? बराबर. चलो नाउ इट इज वेरी इजी. चलो that way force we are going to count force, तो F1 is equal to M1 multiplied by A1, right. So that is 2 multiplied by 2 kg multiplied by 5 meter per second square. क्या होगा बेटा बोलो, 10 न्यूटन हो गए, बराबर. चलो F2 काउंट करना है, तो M2 multiply by A2, M2 क्या है 4 kg multiply by 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलो 4 2 जा 8 न्यूटन. कौन सा ज्यादा है, फर्स्ट वन, राइट. फर्स्ट वन ज्यादा है ना, तो एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स. अंडरस्टूड? इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा फर्स्ट वन. बोलो अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी इजी, बहुत इजी सम है ना, बराबर. चलो नेक्स्ट सम, नाइन 9.3
A motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg. Okay बेटा, तो चलो फर्स्ट वन आपको क्या करना है. फर्स्ट वन आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है. क्या इनिशियल वेलोसिटी? u इज इक्वल टू 108 बराबर किलोमीटर पर आवर. चलो किलोमीटर पर आवर को मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. चलो तो कैसे करेंगे हम मीटर पर कैसे सेकंड में कन्वर्ट? तो 108 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर का 1000 divided by hour 30 that will be 60 minute multiplied by 60 second, so it will be 3600. Understood? बराबर. चलो तो यहाँ 0 0 कैंसल बराबर. 5 2 जा 10 and here 18 2 जा 36 बराबर. तो क्या होगा? 108 multiplied by 5 upon 80. Now everyone listen one thing, whenever there is a conversion of kilometer per hour from kilometer per hour to meter per second, you can directly write this. 5 upon 18 से आप multiply कर दोगे तो भी चलेगा. 1000 upon 3600 नहीं करके ऐसा करोगे 5 upon 80 से multiply, that will be also okay. बराबर. चलो fine. Now क्या होगा बेटा अभी? तो 108 and okay 18 कितना होगा? 6 108. ओके 18 6 108. तो नाउ 6 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 30. क्या आएगा इसका यूनिट? मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी है ना 30 मीटर पर सेकंड. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ आई हैव कन्वर्टेड किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड. ये तो अभी कन्वर्जन हुआ है, अभी पूरा सम करना बाकी है. बराबर. चलो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? कौन बताएगा? वेरी इजी. थोड़ा सोचो फाइनल वेलोसिटी क्या है? Why it is 0? Because after applying brake the car will stop. Okay, तो final velocity will be 0 meter per second. Understood everyone? The total mass of the motor car along with its passengers कितना है? mass, total mass passenger के साथ में बोलो. m equal to 1000 kg. Okay, 1000 kg है बराबर. and the time taken to stop the motor car, t is equal to क्या था? 4 second बराबर. t is equal to 4 second. now all values are here. then now it is very easy to calculate force. Therefore force is equal to m into v minus u upon t. चलो सभी values रख देते हैं. तो 1000 kg multiply by चलो final velocity 0 minus initial velocity 30. Okay, understood everyone? upon क्या होगा? time taken 4. understood? बराबर. 0 minus 30 upon 4. चलो क्या आएगा यहाँ पर? 1000 वहां का वहीं रखूंगी. मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर -30 upon 4 होगा बेटा. -30 upon 4. ओके -30 upon 4 that is 7.5 होगा बराबर. 7.5 minus 7.5 and minus 7.5 multiplied by 1000, so it will be minus 7500. Understood everyone? Minus 7500 Newton. This is the applied force. Understood everyone? So the sign is negative बराबर. That means the force exerted by the brakes is opposite to the direction of motion of the motor car. Obvious है बराबर. ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा ना बेटा. तो इट विल बी इन माइनस. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके. एंड नेक्स्ट सम 9.4. चलो 9.4. now a force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 acceleration 20 meter per second square.
चलो, what acceleration would it give if both the masses were tied together? ओके चलो, ये बहुत ही इजी है सम, इसको आप खुद कर पाओगे. फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू एम ए. बराबर, आपके पास M1 है, A1 है, M2 है और A2 भी है. बराबर, आपको क्या फाइंड करना है बेटा? क्या फाइंड आउट कर रहे हो आप? फोर्स दिया है. बराबर, वेरी गुड. फोर्स दिया है और क्या दिया है? और आपको एक्सेलरेशन भी दिया है, बट आपके पास क्या नहीं है? M नहीं है. बराबर, so that way if I want to find out M1, so the formula will be F upon A2. बराबर, M1 के लिए क्या फॉर्मूला है? F upon A2. बराबर, तो क्या होगा इससे? बोलो. सॉरी, A1. हाँ, A1, F upon A1 and M2 is equal to F upon A2. Sorry. Okay, M2 is equal to F upon A2. Understood everyone? Now easy ना? आप ढूंढ पाओगे? वेरी गुड. ओके, 5/10 आएगा फर्स्ट में, तो फर्स्ट में आएगा यहाँ पर 5/10, सो इज इक्वल टू 0.50. बराबर, 50 kg. एंड सेकंड वन के लिए 0.25 आएगा. बराबर, बिकॉज यहाँ पर क्या है बेटा? बोलो, M2 क्या है? 5/20. ओके, तो इट विल बी 0.25 kg. ओके, हियर 0.50 kg. Understood everyone? Now both the masses tied together. तो जो फाइनल M है वो मुझे क्या करना है? 0.50 प्लस 0.25, दोनों का प्लस, दैट इज 0.75 kg. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? बराबर, तो द कंबाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द, जो एक्सेलरेशन कंबाइंड है A, बराबर, it produced in the combined mass by 5 Newton force would be A is equal to F upon M. चलो, F क्या है? 5 है. बराबर, फोर्स तो सेम ही होगा ना बेटा. नाउ ये M क्या हो गया? 0.75. क्या आएगा उसका आंसर? 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वेरी इजी. बराबर, आएगा बेटा सबको? 5/0.75, दैट इज 5/75, और 5 के प्लस साथ मल्टीप्लीकेशन में 100 चला जाएगा. ओके, सो द आंसर विल बी 6.67. अंडरस्टूड एवरीवन? बहुत इजी आंसर. एंड लास्ट सम 9.5. The velocity versus time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in figure 9.9. Okay, so you can see on x-axis time is given and y-axis velocity in centimeter per second is given. Okay, how much force does the table exert on a ball to bring it to rest? चलो, कितना फोर्स लगेगा? So the initial velocity of the ball is कितनी है? 20. 20 पे है ना वेलोसिटी? देखो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है बेटा? 20. इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल टू 20. ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड. फाइन. चलो, now due to frictional force exerted by the table, the velocity of the ball decreases down to 0. 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी देखो कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी 0 सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके, आफ्टर 10 सेकंड आप देख सकते हो टेबल में, जब 10 सेकंड पे बॉल के बाद बॉल की वेलोसिटी देखो 0. बराबर, thus u is equal to 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, v is equal to 0 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड t is equal to 10 सेकंड. चलो, सभी आ गए आपको आपके पास. नाउ सभी वैल्यू रख दो एक्सेलरेशन की वैल्यू में. v माइनस u अपॉन t, तो 0 माइनस 20 अपॉन टाइम t. बराबर, तो -20. टाइम t कितना था बेटा? t कितना दिया हुआ है आपको? 10 सेकंड. वेरी गुड. बराबर, अपॉन 10, तो इट विल बी क्या होगा? ये -2 सेंटीमीटर ओके पर सेकंड. चलो, -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकंड. हो गया बेटा? पर सेकंड रेज़ टू -2 होगा ये. बराबर, 0.02
मीटर पर सेकंड रेज टू -2. अंडरस्टूड एवरीवन? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा ना बेटा. बोलो, यहाँ तक पता चला सबको? एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? ओके, नाउ क्या पूछा है आपको? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल F इज, तो F इज इक्वल टू एम ए. अभी आप रख दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए. बराबर. तो क्या है आपका मास? कितना था? M 20 ग्राम. ओके, मास देखा ना आपने आगे कितना था आपका? मास 20 ग्राम दिया है ना बॉल का. ओके, तो 20 ग्राम. नाउ आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बोलो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको? 20/1000 करूंगी. बराबर. क्यों 20/1000 होगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाई 20/1000 विल बी देयर? वेरी गुड अरुण, राइट आंसर. वेरी गुड. बराबर, क्योंकि न्यूटन में हमको कन्वर्ट करना है तो आई वांट द मास इन केजी. So that for that I have to convert this into 1000. Okay, divided by 1000. चलो, acceleration अभी क्या आया? -0.02. चलो, now it is easy. बराबर. So एक एक जीरो चला जाएगा तो 2/100 मल्टीप्लाई बाई, चलो यहाँ पर भी 2/100 तो दैट इज 4/1000. तो 0.004 न्यूटन, बट माइनस में होगा ये. Understood? It will be in minus because this value is in minus. Okay, the negative sign implies that the frictional force exerted by the table is opposite to the direction of the motion of the ball. बराबर, it is in opposite direction ना. बराबर, and obviously बराबर जब भी friction force लगता है it is opposite to the motion. Understood everyone? So the value will be in minus. चलो, anyone have any problem बेटा? किसी को भी प्रॉब्लम है आज के सम में? यस और नो? श्योर? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है?